Aarti. Welcome to a brand new video, and today's video is called My Anxiety Routine, और basically these are all the things that I do on my anxious days. और इन चीज़ों को करके मुझे बहुत help हुई है, मेरी anxiety बहुत कम हुई है whenever I've tried these in the past. So I thought I should come here and share it with you guys. Although एक छोटा सा disclaimer before we go ahead, I am not a psychologist or a psychiatrist. I'm not a mental health professional. मैं सिर्फ मेरे personal life के experiences यहाँ पर share करती हूँ and hoping that somewhere something clicks with you and helps you. But if you're experiencing serious levels of anxiety, then please don't watch my video or any other video on YouTube. Please go see a professional, take professional help, and उसके बाद you can do whatever you want to. That being said, जो सारी चीज़ें आज तुम्हारे साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो 10 टिप्स है जिनसे एंग्जाइटी कम होती है, इन सब के पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक रीजन है कि वाई दीज थिंग्स वर्क विद योर एंग्जाइटी. तो वो रीजंस भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी. तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है. I'll put time tag so you can skip to whichever portion you want to go to. So the first thing which is my go to जब भी मुझे एंग्जाइटी का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो पहली चीज़ होने लगती है, आई स्टार्ट डूइंग ब्रेथ वर्क. कोई भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है जो आप कर सकते हो. देयर इज बेली ब्रीदिंग वेयर यू जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर स्टमक एंड यू take a deep breath in till your stomach is out and you very slowly exhale, so and your stomach goes in. बट एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं, जिसका नाम है बॉक्स ब्रीदिंग, जिसका मतलब है यू हैव टू ब्रीद इन टू द काउंट ऑफ 4. सो 1 2 3 4, देन यू होल्ड टू द काउंट ऑफ 4, देन you breathe out to the count of 4. So out 2 3 4. If you look at it, it's like a square, like breathe in, hold, breathe out, hold. That's how you do it. You keep doing it for a few minutes and you should feel better, क्योंकि तुम्हारे breath, the reason is because your breath and your mind are very very deeply connected. The way you breathe determines the way you think and feel and emote, and breathing is the easiest and the most powerful way जिससे तुम अपने एंग्जाइटी के साथ कोप कर सकते हो. And if you can control your breath, you can control your mind. Physiologically what it does is it increases the supply of oxygen to your lungs and lowers your heart rate, जिससे obviously तुम्हें एक instant relief मिलता है. The second thing that really helps me is जब भी मैं थोड़ी सी ऐसे डाउन और आउट और लो और एकदम ऐसे शिटी सा फील कर रही हूँ, I go to YouTube, I put on some motivational, inspirational content or those kind of shows or podcasts, and I just binge watch them. Like everything I've ever done that's ever really made a contribution, I have felt alone in doing it, but alive. After that, when you choose fitting in, it's painful. But don't ever believe for a second that you are not going to have to stand on your own. Now to each his own. ज़रूरी नहीं है ये तुम्हें भी मदद करेगा, बट मुझे बहुत मदद करता है कि जब भी मैं, क्योंकि एंग्जाइटी में you're not feeling well, you're kind of feeling bummed out and low and demotivated and whatever, तो I go and put on anything. ओपरा का शो तो मैंने इतना देखा है. There's so many things that I've watched. Then a lot of days what I do is I search for particular topics. Like अगर मुझे एंग्जाइटी से रिलेटेड किसी की सक्सेस स्टोरी सुननी है, मुझे लगता है वो सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, I'll type that, I'll go listen to that, watch that. The point is कि तुम वो चीज़ देखो जो तुम्हारा मूड अच्छा कर देगा. तो अगर if you want to sit and watch a sitcom, if you want to watch Friends, oh my god, I have binge watched Friends so much. The third thing, and I did this a lot last year in 2020, क्योंकि I was waking up feeling anxious, तो मैं सुबह जल्दी उठकर नीचे अपने घर के, अपने सोसाइटी के गार्डन में जाकर I used to walk barefoot on the grass. अब ये एक बहुत ही मतलब ओल्ड स्कूल थिंग है. हम अपने पहले लाइक व्हेन वी वर किड्स ऑल्सो, जब हम अपने घरों में रहते थे ऐसे कंक्रीट जंगल में, जब हम नहीं आए थे, लाइक मेरे नागपुर के घर में भी देयर इज एन आंगन, बेयरफुट चलना बहुत आसानी से हो जाता था, जो आजकल होता ही नहीं है. सो आई टुक टाइम आउट लास्ट ईयर. आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू द गार्डन एंड टेक माई टाइम, एंड एटलीस्ट 15 मिनट तक मैं बेयरफुट घास पर चलती थी. Why walking barefoot on grass helps? जब आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है, इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं या ग्राउंडिंग कहते हैं, इफ़ यू डिड नॉट नो अबाउट दिस. एंड दिस इज़ वेरी 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 हीलिंग फॉर ह्यूमन बॉडीज. सो व्हाट हैपेंस इज
बेसिकली वी आर बायो इलेक्ट्रिकल बींग्स, हमारे बॉडी का एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है एंड वी कैरी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव आयॉन्स, ओके। और जब हम हमारा एक्सपोजर होता है टुवर्ड्स फोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, दीज पॉजिटिव आयॉन्स बिल्ड अप। सो व्हेन वी गो आउट देयर इन द नेचर और हम स्पेशली ग्राउंड के साथ जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो जो अर्थ के नेगेटिव आयॉन्स होते हैं उनके साथ हमारी वो एक्सचेंज होता है एंड द आयॉन्स इन आवर बॉडीज गेट बैलेंस्ड एंड बेसिकली व्हाट हैपेंस इज वी डिस्चार्ज आवर एक्सेस एनर्जी व्हिच काइंड ऑफ कॉजेज अ हीलिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। एक्चुअली अगर ये मैं जो बोल रही हूँ वो ढंग से नहीं समझ रहा, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड पुट अ वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर यू टू गो वॉच इट लेटर। अनदर थिंग दैट आई हैव डन व्हिच इज रियली हेल्प्ड मी इज टेकिंग अ वॉक आउटडोर्स और स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स और जस्ट गोइंग एंड सिटिंग आउट देयर इन द पार्क। Mostly though I would go down with my mom early mornings and she would take a walk and I would just sit in the park and वो इतना calming लगता था। और also पिछले साल मैंने एक और friend के साथ शाम को भी मेरे घर के पास एक this beautiful park near my house, so me and a friend started going there for evening walks. Sometimes we would go to play badminton, sometimes I would just go and sit there and just look at the trees। जो मैंने point number 3 में explain किया, वो जो positive negative ions का जो exchange होता है, actually that happens anywhere, that happens whenever you are out there in the nature, around trees, जब आप बीच पर भी होते हो। इसीलिए बीइंग इन नेचर काइंड ऑफ इंस्टेंटली calms your mind। Did you guys know that nutritional deficiencies are linked to having symptoms of anxiety? एंड अगर तुम्हारे बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो इससे सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी, नींद नहीं आना, मसल क्रैम्प्स होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें ऑलरेडी हो रही है, दैट्स अ साइन दैट यू कुड बी डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम। एंड मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर योर बॉडीली फंक्शंस। इट्स एक्चुअली कॉल्ड द एंटीडोट टू स्ट्रेस और अ रिलैक्सेशन मिनरल। बहुत सारे लोग जो है वो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं टू बी एबल टू स्लीप वेल इन द नाइट एंड टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू गाइज अबाउट these magnesium supplements by this brand called Zenith Nutrition। ये जो supplements है, they are magnesium glycinate supplements। अब magnesium supplements बहुत अलग अलग forms में आते हैं, but your body finds it very easy to absorb magnesium in the form of magnesium glycinate, and also it's very light on your stomach। So in one bottle of this supplement you will get 60 capsules। It's priced at 640 rupees and it has no sugar, no preservatives, no corn, no soy, no dairy, yeast free and gluten free। और इन चीज़ों के अलावा भी ना मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इट मे लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। इट ऑल्सो रिड्यूसेज योर सिम्टम्स ऑफ PMS एंड इम्प्रूव्स योर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। सो यू शुड गो गेट योर सेल्फ दीज सप्लीमेंट्स, बट there's a big but here। मैं ना कभी भी कोई भी सप्लीमेंट्स और कोई भी ऐसी सारी चीज़ें माइंडलेसली अपने मन से कोई भी वीडियो देख के नहीं लेती हूँ। सो आई विल सजेस्ट द सेम थिंग टू यू। ना ही मेरा वीडियो ना ही किसी और का वीडियो देख के तुम लो, इन्फॉर्मेशन ज़रूर लो, बट यू शुड डेफिनेटली गो एंड फाइंड आउट इफ यू आर डेफिशिएंट इन दैट मिनरल बिफोर टेकिंग दो सप्लीमेंट्स। डू अ टेस्ट इफ रिक्वायर्ड एंड देन यू टेक दीज अकॉर्डिंग टू वॉट योर डॉक्टर सजेस्ट यू। Another thing जो मैं पिछले 1-2 साल से ट्राई कर रही हूँ and which has really helped me are scented candles। Now scented candles aren't just some faff जो तुम मतलब Instagram पे लोगों को जलाते हुए देखते हो, just like show off self care ritual नहीं है। This actually works क्योंकि scented candles are like a form of aroma therapy। Aromatherapy actually has been in practice since years now। मतलब हजारों सालों से बहुत सारे communities के लोग, clans के लोग aromatherapy को use करते हुए आए हैं to treat illnesses and diseases। Scented candles की जो smell होती है, it stimulates this part of your brain which is also called your emotional brain or the limbic system। So when this part of the brain is stimulated, your body ends up releasing endorphins and serotonin, which are happy hormones। And this part of the brain is also connected to other areas of the brain which basically control your heart rate and your blood pressure and breathing। So obviously automatically ये सारी चीज़ें regulate हो जाती है। Playing some relaxing music, this is also another one of my go-tos। पर इसमें ना मैं बहुत brain नहीं लगाती हूँ। I just basically go and search for relaxing music for anxiety। Literally that's what I write and then I go and see पहले 2-3 जो options आते हैं उसमें से whatever I'm connecting to most I'll go and listen to it। But when I say music, ज़रूरी नहीं तुम यही music सुनो। बहुत लोगों को अपनी खुद की एक playlist होती है लोगों की। You know there is some playlist that is your comfort zone which you really like listening to, which always
this boosts your mood. Another thing that I've seen a lot of late is this thing called binaural beats, जो बहुत लोग सुनते हैं, you know, to reduce their levels of stress or to fall asleep. और तुम YouTube पर भी जाओ तो तुम्हें बहुत सारे binaural beats के tracks मिलेंगे and talks भी मिलेंगे to plug in your ears in the night and listen to while you fall asleep. Now binaural means both ears. So होता ये है, इसका फंडा ये है कि when you plug in your earphones और तुम इन ट्रैक्स को सुनते हो तो दोनों कानों में तुम्हें अलग फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुनाई देता है. It's too much science, yeah, but I'm just going to try and explain to you. Suppose you listen to music of 120 hertz in one ear and 132 hertz in the other ear. Your brain is going to process it as music of 12 hertz, basically उनका difference, and anything which is below, I'm going to read this out because obviously I've not learnt it. And binaural beats which are between 1 to 30 hertz are supposed to create the same brainwave pattern जो तुम एक्सपीरियंस करते हो ड्यूरिंग मेडिटेशन. सो ये जो बीट्स होते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आती है, बट योर सबकॉन्शियस माइंड कैन pick this and it starts relaxing itself. That's how it works. Another thing which I have tried and which has helped me a lot on a lot of days is coloring mandalas. इस पे मैंने एक पूरा वीडियो किया है जो मैं ऊपर लिंक अप कर दूंगी on why adult coloring books are good for your mental health. If you don't want to color mandalas and if you want floral patterns or if you want nature or if you want birds, animals, whatever, you're going to get all kinds of books online. बट हाउ कलरिंग हेल्प्स इज, कलरिंग जो एक्टिविटी है वो तुम्हारे ब्रेन का जो फियर सेंटर है विच इज कॉल्ड अमिगडाला, उसको काम डाउन करती है. ऑल्सो व्हेन यू आर एंगेज्ड इन वन एक्टिविटी जिसमें तुम्हारा पूरा ध्यान है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर कलरिंग थिंग्स लाइक मंडलास जिसमें बहुत ही यू नो छोटे छोटे इंट्रिकेट डिजाइंस है, यू आर फुल्ली फोकस्ड इन ट्राइंग टू कलर बिटवीन लाइन्स ओवर देयर. सो व्हेन यू आर फुल्ली फोकस्ड ऑन दैट एक्टिविटी योर माइंड डजंट गो हियर देयर, इट डजंट थिंक अबाउट थिंग्स दैट स्ट्रेसेस इट आउट. सो दैट्स हाउ इट ऑब्वियसली हेल्प्स. अगर तुम्हें सिर्फ कलरिंग नहीं करना है, इफ यू like drawing, if you like sketching, if you like painting, you engage in whatever form of art that you like. The next thing is a foot massage, a simple foot massage at home before going to sleep in the night. ये मैंने पिछले साल बहुत सारे दिन किया in the night before sleeping when I was having bad anxiety. और ये मैंने इसलिए करना शुरू किया क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा. आई वॉज रीडिंग अबाउट आयुर्वेदा एंड व्हाट आयुर्वेदा सजेस्ट फॉर एंग्जाइटी, और उसमें लिखा हुआ था, वन ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई फाउंड, इट सेड दैट यू नो पहले तो आयुर्वेदा सजेस्ट you do abhyang every day like a full body massage. Then it says अगर तुम्हारे पास वो करने का वक्त नहीं है, you can massage the sole of your feet. क्योंकि तुम्हारे सोल ऑफ योर फीट में जो है बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं जो तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड है. सो व्हेन यू मसाज द सोल ऑफ योर फीट यू बेसिकली बेनिफिट ऑल योर बॉडी ऑर्गन्स एंड ऑफ कोर्स योर नर्वस सिस्टम. एंड नॉट जस्ट दैट, एक फुट मसाज से तुम्हारे बॉडी के जो दोषाज होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं. इफ़ यू नो वी ऑल हैव वाता, पित्ता एंड कफा, 3 डिफरेंट दोषाज इन आवर बॉडी, एंड स्पेशली एंग्जाइटी एंड ऑल तब होता है जब तुम्हारे बॉडी में वाता इम्बैलेंस हो जाता है, वाता एग्रीवेशन होता है. सो अ फुट मसाज हेल्प्स रियली वेल विद दैट. मैंने पिछले साल आई थिंक बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस मसाज इन विंटर्स, आई यूज सरसों का तेल बिकॉज इट्स वार्म. पर तिल का तेल भी यूज होता है, बट आई विल नॉट रेकमेंड एनीथिंग बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, एंड डिफरेंट ऑयल्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी, सो यू शुड फाइंड दैट आउट बिफोर यू डू दैट मसाज. बट व्हेन आई वाज डूइंग दिस लास्ट ईयर, ओ माय गॉड, मुझे इतनी चैन की और इतनी सुकून की नींद आ रही थी on all those days that I did a massage and went to sleep. So next thing that has helped me tremendously in falling asleep peacefully whenever I had bad anxious days was essential oils. So we are back to aromatherapy again, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की. मैं अपने पिलो पर रात को लैवेंडर ऑयल के ड्रॉप्स डालती थी सोते वक्त. आई हैड हर्ड पीपल डू इट एंड आई वाज लाइक चलो लेट्स गिव इट अ शॉट, क्या ही मतलब देखते हैं क्या हो जाएगा. ऑन डेज जब यू नो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती थी, बहुत घबराहट होती थी, ऐसे लगता था नींद नहीं आएगी, दोज वर द डेज आई वुड डू दिस प्रैक्टिस. एंड द मोमेंट यू स्मेल दैट लैवेंडर ऑयल ना, मतलब वो स्मेल लेते ही यू देयर इज दिस सेंस ऑफ काम विच स्टार्ट्स growing over you. I think the top one which I have heard which helps in terms of anxiety is definitely lavender. उसके अलावा citrus fragrances help करती है तुम्हें काम करने में, और rose और sandalwood भी help करती है. But you should be careful because there are some other fragrances which can kind of increase your restlessness and also you should do your research before investing in your essential oils. And the last thing which was literally my nighttime ritual for months was
putting on some affirmations or putting on a guided meditation in my on YouTube and putting on the headphones and falling asleep while listening to that. I feel good about myself. I release the need for self-criticism. I appreciate myself. एंड दैट हेल्प्स यू सो मच, स्पेशली जब तुम्हें ये एंक्शियस मोमेंट्स आते हैं, बहुत घबराहट सी हो रही है, एफर्मेशंस तो तुम्हें बहुत हेल्प करते हैं. तो भले ही तुम्हें सुनने नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने मन ही मन में एफर्मेशंस कहने हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो. समथिंग एज सिंपल एज आई एम सेफ एंड आई एम प्रोटेक्टेड, बिकॉज वेन यू आर एंक्शियस, यू आर फीलिंग फियरफुल एंड यू आर फीलिंग लाइक तुम खतरे में हो, तुम डेंजर में हो, और लाइक विथ एवरी ब्रेथ आई टेक आई फील मोर एंड मोर पीसफुल, जो भी तुम्हारे लिए काम करता है. और एफर्मेशन को एक बार बोल के इट डज नॉट वर्क, तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है. तो मैजिक ऑफ इट इज इन द रेपिटेशन, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिवली एफर्मिंग स्टेटमेंट अपने माइंड में बार बार बोलते हो, योर ब्रेन स्टार्ट्स बिलीविंग दैट एज द ट्रूथ. So those are the 10 things that have really helped me on my anxious days. Obviously मैं सारी 10 की 10 चीज़ें एक दिन पे नहीं करती थी, but I remember कि जब मेरी एंग्जाइटी सिवियर थी पिछले कुछ महीने, तब I would do at least 70% of these things every single day and these really helped me. Let me know तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं नीचे कॉमेंट्स में. And if you have any friends or anybody you know who's like battling anxiety और जिसको ये वीडियो मदद कर सकता है, please share it with them because I wanted to help as many people as it can. अगर तुम चाहते हो कि मैं एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊँ, let me know in comments below which ones if I can, and if it's in my capacity I will try and make them. On that note, I'm going to go and see you guys real soon. You take care. Bye bye.